کراچی سے تشریف لائے ہیں اور گاڑی میں آئے ہیں، ٹرین میں آئے ہیں، جہاز میں نہیں آئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے پاس جہاز کا ٹکٹ نہیں ہوتا. نذیر لغاری صاحب. قابل عزت و احترام میاں رضا ربانی صاحب، جہانگیر بدر صاحب، اسلم گرداس پوری صاحب، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، میاں صاحب، دوستوں، ساتھیوں، سیاستدانوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی یا نہ کہی ہوئی یا غلط طور پر کہی ہوئی یا درست طور پر کہی ہوئی کسی بات کی تردید کرے. تو مجھ سے ایک تو وضاحت طلب کی گئی ہے کہ پیر مظہر الحق کیوں نہیں آئے. آج قائم علی شاہ صاحب کی ہمشیرہ کا سوئم تھا، میرا خیال ہے کہ وہ وہاں گئے ہوئے تھے اور آج رات کو وہ کسی وقت پہنچیں گے اس تقریب کے ختم ہونے کے بعد. اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں جہاز سے آیا. اسلم گرداس پوری صاحب نے چند روز پہلے فون کیا اور مجھے یہ حکم دیا کہ مجھے یہاں حاضر ہونا ہے. میری ان سے پہلے کبھی بالمشافہ یا ٹیلی فون پر یا خط و کتابت کے ذریعے کسی قسم کی کوئی مراسلت یا آشنائی نہیں تھی. براہ راست بالواسطہ طور پر میں نے 40 سال سے جانتا ہوں. اتنی ان کی سیاست کی عمر ہے اتنی ہی میری ان سے شناسائی کی عمر ہے. اور جتنی باتیں ان نے لکھی ہیں ان تمام باتوں کی میں اس پورے حال میں تنہا شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے. اس کتاب میں 4-5 ذائقے ہیں اور ان 4-5 ذائقوں کو 4-5 یا اس سے بڑھ کر 6-7-8-10 مزاجوں کے افراد اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں. یہ کتاب تاریخ ہے اور تاریخ کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہ کتاب سوانح عمری ہے اور سوانح عمری کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہ کتاب ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر کے تمام مندرجات کا تقاضا پورا کرتی ہے. یہ کتاب ایک داستان ہے اور داستان گوئی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہ کتاب ایک ادبی شاہکار ہے اور ادبی شاہکار ہونے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے. مجھے یہ گلہ رہا ہے، ہمیشہ گلہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پڑھتے نہیں ہیں. مجھے یہاں پر خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سارے بڑے مجمع میں میں لوگوں کو بہت پڑھا لکھا دیکھ رہا ہوں. وہ چیزوں کا، جملوں کا، لفظوں کا، حرفوں کا ابلاغ کر رہے ہیں اور اندر سے ابلاغ کر رہے ہیں اور پوری بات کو سمجھ رہے ہیں. اسلم گرداس پوری صاحب نے الف کے گر جانے کا تذکرہ کیا اور شاید یہاں پر پڑھنے والوں نے سمجھ بھی لیا اور وہ تذکرہ 2.5-3 صفحات پر پھیل گیا. اگر کراچی میں ہوتے تو پورا جملہ گر جاتا اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا اور پورے مصرے گم ہو جاتے ہیں. ہم وہاں پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری نظمیں گم ہو جاتی ہیں، غزلیں غائب ہو جاتی ہیں اور لوگ حرف کی شناسائی سے کچھ اور مفاہیم نکالنا شروع کر دیتے ہیں
मगर यहां पर गनीमत है कि इस शहर ने बड़े लोगों को देखा है। बिलाशुबा कराची के लोगों ने भी बड़े लोगों को देखा और वहां भी बड़े लोग रहते रहे हैं और अब भी रहते हैं। इस शहर ने बड़े लोगों को देखा, इस शहर ने इकबाल को देखा, फैज को देखा, सूफी तबस्सुम को देखा, ज़हीर कश्मीरी को देखा, मिंटो को देखा। इस शहर ने एक पूरी गैलेक्सी को देखा, रोशन गैलेक्सी को, ताबनाक गैलेक्सी को, ताबनाक कहकशां। और ये लाहौर था, ये लाहौर था जब यहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो मुर्दे भी कब्रिस्तानों से रक्स करते हैं। जो लोग तह जमीन थे, जो लोग खाक बसर थे, जो उस्तादगान खाक थे, जो धरती में छुप गए थे या छुपा दिए गए थे, जो गैब थे या गैब कर दिए गए थे, जो सो गए थे या जिन्हें सुला दिया गया था, वो शान से उठे और आन से उठे और उठकर छा गए और छाते चले गए। ये एजाज था, ये कमाल था, ये रूह की सच्चाई थी, ये अंदर का भांपपन था जो असलम गुरदासपुरी के शेरों में बोलता है, जो हबीब जालिब की नज़्मों में बोलता था। ये इस शहर की मिट्टी का हुस्न था, जिस मिट्टी में शाह हुसैन आसूदाए खाक हैं, जहां पर हर्फ आते हैं, कतार दर कतार हर्फ आते हैं और कतार दर कतार लफ्ज आते हैं। इस शहर की ये बदनसीबी है और पाकिस्तान की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का ये जबर है कि इस शहर के लोग 5 जुलाई 1977 से लेकर आज तक जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार से बाहर नहीं निकल सके। ये लोग पूरी कुव्वत से जनरल ज़िया से लड़ते रहे हैं। इन लोगों ने पूरी दयानत के साथ जनरल ज़िया से जंग लड़ी है। यहां पर इस कतार में कम से कम 3-4 लोग तो ऐसे बैठे हैं कि जिनकी पीठों पर ज़ियाउल हक के लगाए हुए कोड़ों के दाग हैं। हमारे यहां पाकिस्तान के लोग अभी मियां साहब गालिबन बात कर रहे थे। हां, वो ठीक कह रहे थे, वो ठीक कह रहे थे। गांधी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, मैं कहता हूं और अपनी ज्ञानत से कहता हूं, अपने इल्म की रोशनी में कहता हूं। गांधी बहुत कोता का आदमी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर्व का था। कांग्रेस ने बहुत सहा, एक कॉलोनियल इक़्तिदार से बहुत सहा, मगर अगर गांधी को, नेहरू को और कांग्रेस को ज़ियाउल हक का 11 साल इक़्तिदार देखना पड़ता तो हम देखते कि वो किस भांगपन से उठते हैं और किस जिस मुल्क ने और जिस पार्टी ने जनरल ज़िया को भुगता है, जिस मुल्क ने फर्डिनेंड मार्कोस को भुगता है, जिस मुल्क ने पिनोशे को भुगता है, उन मुल्कों के लोग बालिग नजर होते हैं, बहुत आगे देखने वाले होते हैं और बहुत तवील लड़ाई लड़ने वाले होते हैं। और अब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ खेल खेला जा रहा है, उस सारे खेल के सामने मुझे नहीं पता कि यहां पर मौजूद लोगों की, मैं किसी की दानिश पर शक नहीं करता, किसी के इल्म पर शक नहीं करता, किसी की बहादुरी पर शक नहीं करता, लेकिन मेरा अंदर का वजदान बोलता है कि जो कुछ अब सोचा जा रहा है उसके सामने
अगर रुकावट है, अगर चट्टान जैसी रुकावट है, तो ये लीडरशिप है और ये पार्टी है। अगर ये पार्टी ना हो तो सिर्फ 2 दिन का इस मुल्क में जोग्राफिया तब्दील होने में 2 दिन भी नहीं लगेगी। मैं फिर बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ये मजाक की बात नहीं है, ये 58 की बात नहीं है कि एक जरनैल को ख्वाब आए किसी होटल के अंदर लंदन में बैठकर कि अच्छा जी मुझे ख्वाब आ रहा है, मैं देखता हूं कि मुझे सोचना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, और फिर मुझे सोचना चाहिए कि इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है, और मुझे सोचना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए। तुम कौन होते हो जनरल सोचने वाले? तुम्हें किसने कहा है कि तुम बैठकर सोचो? तुम्हें सोचने का किसने तनख्वाह दी है कि तुम तनख्वाहदार आदमी बैठकर सोचना शुरू करो कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है? ये काम पार्लियामेंट का होता है, ये मुंतखब नुमाइंदों का होता है, सियासी लोगों का होता है, सियासी कारकुनों का होता है। तुम कौन होते हो सोचने वाले? अयूब खान, मैं सोच रहा हूं लंदन के होटल में बैठकर कि मुल्क के मसाइल क्या हैं और उनके मसाइल का हल क्या है। तुम क्या सोचोगे? तुमने जो कुछ सोचा वो हमने देख लिया था 1971 में, तुम्हारे दूसरे जानशीन पानशीन सल्यूट कर रहा था, हमने देखा था, हमने देखा कि वो किस तरह से अपने स्टार उतार कर उसके कदमों में डाल रहा था और अपना रिवाल्वर उसके पैरों में रख रहा था। तुम क्या सोचते हो? मैं सोच रहा था और ये फिर आया दीन मुबीन का शारे आजम बनकर, ये आया रईसुल मुनाफिकीन, ये आया शद्दादुल अस्र, ये आया फिरौनुल दहर, ये आया ज़ियाउल हक, और इसने इस मुल्क पर करबला, हर दिन करबला और हर रात शाब गरीब बना। इस मुल्क ने भुगता है ज़ियाउल हक को, इस मुल्क ने भुगता है कयामत को, और ये जो कुछ कहा गया है ये उसी कयामत की, उसी कयामत के शब और रोज की दास्तान है। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है कि मैं जनरल ज़ियाउल हक पर लानत भेजूं। मुझे बहुत मजा आ रहा है कि उसने इस मुल्क में जो तबाही के बीज बोए, जो बर्बादी की फसलें बोई हैं, हमें वो काटनी पड़ रही है। वही खूनी भेड़िया था, वही दरिंदा था, और उसने इस मुल्क के अवाम से जीने की आरज़ू छीन ली थी, और उसने यहां से खुशी छीन ली थी और खुशबू छीन ली थी, और खुशबू को फांसी पर चढ़ाया था और शहादत। ये किताब उसकी शहादत है, ये किताब उसकी, ये गवाही है किताब उसकी उन तमाम शब रोज की। ये महज अली सरदार जाफरी के घर का मुशायरा नहीं, ये किताब महज कैफी आजमी के साथ शेरों पर लुत्फ अंदोज होने की दास्तान नहीं, ये किताब महज अलिफ के गिर जाने की दास्तान नहीं, ये किताब बहुत कुछ बोलती है। ये किताब दास्तान है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान के सियासत की, और इस पाकिस्तान के सियासतदानों की, और आबरूमंद खानदान की, और आबरूमंद लोगों की, आबरूमंद क़यादत की, आबरूमंद कारकुनों की। हमने किस कयामत को देखा, किस कयामत को भुगता, किस कयामत से गुजरे। ये पाकिस्तान जनरल ज़िया से गुजर कर आया है, ऐसे आग और खून के तूफान से गुजर कर आया, और अब भी जहां कहीं भी आपको इस मुल्क में आग और खून नजर आ रहा है, वो सब कुछ जनरल ज़िया का किया धरा है। और इस जनरल का जो अभी चंद दिन पहले गया है, ये उस जनरल का किया धरा है और जनरलों का किया धरा है। हमने वतन की आबरू हिफ्ज़ सिपाह में दी, हमने वतन की आबरू हिफ्ज़ सिपाह में दी, फिर ये वतन की आबरू नजरे सिपाह। हम
हम किन कयामतों से गुजरे, हम किस अजाब से गुजरे, हम किस जहन्नम से गुजर कर आए, किस तरह के लोगों से हम गुजर कर आए, कैसे कोता कद लोगों के दरमियान से गुजर कर आए हैं, जो किसी सर्व कामत को पसंद नहीं करते थे, जो किसी सर्व कद को पसंद नहीं करते। हम ऐसे बदसूरतों में फंस गए थे जो किसी खूबसूरत को पसंद नहीं करते थे, जो किसी हसीन को नहीं देखते, बदशक्ल लोगों में आ गए थे। अंदर के बदसूरत थे, बाहर के बदसूरत थे, बदशक्ल थे, और किसी खूबसूरत चीज को पनपने नहीं देते थे, उभरने नहीं देते थे, संवरने नहीं देते थे। हम ऐसे लोगों में आ गए थे। ये ऐसे लोगों की दास्तान है। हम कैसे मुनाफिकों में फंस गए। हर एक ने हर मुनाफिक के चेहरे पर एक गाजा लगा दिया, कुछ सुर्खी लगा दी, कुछ पाउडर लगा दिया, और मुनाफिक को कहा गया कि ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बड़ा नजरियाती है, बड़ा कारकुन है, बहुत ही अच्छा है, इसकी शक्ल तो देखो, क्या नूर बरसता है, किसकी बातें तो सुनो और सुनते ही चले जाओ, लच्छेदार बातें होंगी। क्या पता था कि अंदर एक कयामत खेल मुनाफिकत थी। मैं असलम गुरदासपुरी को एक अलग से सलाम पेश करता हूं, और सन्यादी को भी हम जानते थे, मुमताज भुट्टो को भी जानते थे, हर 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 को भी जानते थे, और हम सब चुप हो जाते थे, चुप जाते थे मलिक मेराज खालिद का नाम आने पर, मलिक मेराज खालिद के चेहरे पर पड़ा हुआ मुनाफिकत का पर्दा चाक करके तार करके चौराहे में खड़ा कर दिया कि ये था मुनाफिक, ये था मेराज खालिद। आप जब तक तनकीद करना नहीं सीखेंगे, सच को सच, झूठ को झूठ कहना नहीं सीखेंगे, आप जब तक मुनाफिकत को मुनाफिकत, सच्चाई को सच्चाई, हक को हक, सच को सच, झूठ को झूठ, पूरे तौर पर बिला कमो कासत, हर्फ के बगैर, किसी जेर जबर के बगैर, किसी नुक्ता और कामा के बगैर, किसी साइन कोलन के बगैर, जब तक आप सच को सच नहीं बोलेंगे, आप नहीं बचेंगे, नहीं पनपेंगे। आपको कहना पड़ेगा। और आपने कहा है असलम गुरदासपुरी साहब, मैं आपको सलाम करता हूं। बहुत सी बातें हुई हैं, इन्होंने कहीं भी अपने आप को भी नहीं छुपाया है, जहां जरूरत पड़ी है अपने आप को भी बेनकाब करके सामने कर दिया कि मैं यहां पर था, इस जगह पर था, इस मकाम पर था, इस जगह पर था। कहीं भी किसी के साथ कोई रू रियायत नहीं करनी चाहिए। सच्चे मुआशरों में तो ये बहुत होता है, हमारे जैसे मुआशरों में लोग ऐसा नहीं किया करते हैं। इन्होंने तो एक पूरी रिवायत को ही बदल दी है। ये अंदर से अदीब था, बाहर से सियासी कारकुन था, कभी अदीब बन जाता था, कभी सियासी कारकुन बन जाता था। इस दोहरे हुस्न के साथ, दोहरे जमाल के साथ, दोहरे कमाल के साथ, दोहरे खूबसूरती के साथ यूं आया और ये किताब लिखी। ये किताब रहेगी 25 साल, 50 साल नहीं, 100 साल की जमानत मैं देता हूं, बाकी जमानत आप।